Hello everyone. Now it's time for maths. In maths, we had started the new chapter number 9, measurement in the last period. In the last period, we had learned about measuring in meters and centimeter. Now we will see measuring in kilometers. If you have to measure how wide the ocean is or the distance from Thiruvananthapuram to Chandigarh, you cannot do it using meters. You will need a bigger unit of measurement called kilometers. In short form, we can write km. 1 kilometer is equals to 1000 meters. This measurement you have to remember always. See, लास्ट पीरियड हम लोगों ने देखा कि हमें कोई भी चीज़ की अगर लंबाई यानी कि लेंथ नापनी है तो हम मीटर और सेंटीमीटर का यूज़ करते थे, पर जब हमें बहुत ही ज़्यादा लंबा डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो उसके लिए हमें एक बड़ा यूनिट मेजरमेंट का जो है दैट इज़ किलोमीटर, तो हम वो किलोमीटर का यूज़ करेंगे. A school bus is about 10 meter long. So 100 school buses standing one behind the other will be 1 kilometer long. The longest train in the world is in Belgium and is 1 kilometer 733 meter long. अगर एक बस का हम मेजरमेंट देखेंगे उसकी लेंथ का तो वो शायद राउंड अबाउट 10 मीटर होंगी, पर ऐसे ही अगर 100 स्कूल बसेस एक साथ अगर लाइन में हो तो वो क्या हम वो सारा मीटर से मेजर करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा. तो उसके लिए हमें बड़ा मेजरिंग यूनिट यानी कि किलोमीटर में हम मेजर कर सकते हैं. So, or this is one information is there, longest train in the world. दुनिया में सबसे लंबी ट्रेन कहाँ पे है तो दैट इज इन बेल्जियम. वो बेल्जियम में है और वो कितनी लंबी है 1 किलोमीटर एंड 733 मीटर लॉन्ग. Now here in the picture you can see it takes me about 10 minutes to walk 1 kilometer. It takes me about 15 minutes to walk 1 kilometer. Here, father and daughter both are going on walking. So, the father is telling, if I am walking 1 kilometer, I take 10 minutes. Then daughter is telling, if I walk 1 kilometer, I am taking 15 minutes. So, whenever we are measuring the distance on the road, we have to say in kilometer. If we write the 3 units of measuring length that we have learned so far, from the largest to smallest units, it would be kilometer, meter and centimeter. So if we want to see the wide range of measuring length, for that we have 3 measuring units, that is kilometer, meter and centimeter. And you have to remember that kilometer is the longest of 3 units. ये जो तीनों यूनिट है लेंथ के लिए उसमें किलोमीटर सबसे बड़ा है, देन मीटर, और सबसे छोटा है शॉर्टेस्ट ऑफ द 3 यूनिट्स दैट इज सेंटीमीटर. So now all of you understood about किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर. सबसे ज़्यादा लंबाई अगर नापनी है तो हमें किलोमीटर देखना है. जैसे कि यहाँ से राजकोट कितना है तो क्या वो हम मीटर में मेजर कर सकते हैं? इट इज़ टू फार. तो वो काफ़ी दूर है यहाँ पे, तो उसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो हम मीटर में नहीं कर सकते. उसके लिए हमें करना है किलोमीटर. एंड मीटर फॉर some things like some building are there,
और more than any other thing, like if you want to measure the pencil, or even if you want to measure the cloth also, अगर किसी कपड़े की लंबाई भी अगर नापनी है, then we will use the meter measurement unit. But if the shortest यूनिट इफ यू वांट टू सी, बहुत ही मतलब छोटी चीज है और उसकी लंबाई नापनी है, तो उसके लिए हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे. जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, अगर छोटी सी पेंसिल का मेजरमेंट हम करेंगे तो वो हम सेंटीमीटर में देखेंगे. इवन कीज ऑफ द कीबोर्ड की कीज का अगर हमें मेजरमेंट लेना है तो वो भी हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं. सो दीज आर द 3 यूनिट्स फॉर measuring length. Now we will see the exercise 9th B. What would you use to measure these? Centimeter, meter or kilometer? So height of a building. किसी बिल्डिंग की अगर ऊंचाई आपको नापनी है तो वो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? So for that we will use meter. डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई. मुंबई से चेन्नई का अगर डिस्टेंस हमें देखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? किलोमीटर. लेंथ ऑफ अ माउस टेल. ये जो माउस की टेल है, अगर उसको हमें नापना है तो हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे? किलोमीटर? नो. मीटर? नो, बट सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ अ साड़ी. ऑल ऑफ यू हैड सीन साड़ी. तो साड़ी कितनी लंबी है, तो उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे? मीटर. लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन यानी समुंदर का जो किनारा होता है, दैट इज कॉल्ड कोस्ट लाइन. तो वो उसको अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे किलोमीटर, बिकॉज वो बहुत लंबा होता है. सो फॉर दैट वी हैव टू यूज किलोमीटर. Then length of a scissor. All of you had seen the scissor and you all are using also. So for measuring the length of scissor, what will you use? We will use centimeter because it is smaller one. Now next question. Fill in the blanks using centimeter, meter or kilometer. Same things are there. Height of a coconut tree. कोकोनट ट्री की अगर हाइट हमें मेजर करनी है तो उसके लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे? मीटर. लेंथ ऑफ अ टेबल 2. व्हाट विल वी यूज? मीटर. लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म 6. देन व्हाट विल वी यूज? सेंटीमीटर. डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू होम. घर से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, अगर वो हमें मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे? किलोमीटर. लेंथ ऑफ अ शू लेस 30. शू लेस को अगर मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे? सेंटीमीटर. हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल. फ्लैग पोल यानी जिसपे हम ये झंडा लगाते हैं उसे बोलते हैं फ्लैग पोल. तो फ्लैग पोल की अगर हमें ऊंचाई मतलब कि उसकी लेंथ अगर मेजर करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मीटर. सो दीज आर द एग्जांपल्स एंड इवन ब्लैंक्स आल्सो. सो यू नाउ आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर. Now on the next page we will do the next question. See, this is also very easy. You have to write in from the picture only that Anil's home and the places close to it are shown on the map. Study the map first to answer this question. देखो यहाँ पर ये पूरा मैप दिया गया है. बीच में अनिल का हाउस है और अनिल के हाउस के आसपास की जो जगह है वो कितने डिस्टेंस पर है उसका मेजरमेंट भी हर जगह पे दिया गया है. ठीक है, तो वो जो सारे मेजरमेंट है उसके हिसाब से हमको
आंसर देना है. Now what are the blanks? The shortest route from Anil's house to the market is via the dash and is dash किलोमीटर. अब शॉर्टेस्ट रूट मतलब अनिल के घर से मार्केट तक का है, तो वो वाया मतलब किसकी नजदीक से होके वो जाएगा, मतलब कहाँ से हम पास होंगे तो वो हमें बताना है. तो वाया क्या आएगा उसमें, ये है अनिल का घर और उसको मार्केट जाना है. तो बट ऑब्वियस कि हम यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ से स्कूल आएगा बीच में और फिर यहाँ से हम जाएंगे मार्केट. सो दिस इज कॉल्ड अनिल्स हाउस. वी आर गोइंग टू स्कूल वाया वी आर गोइंग टू मार्केट वाया स्कूल. वाया स्कूल यानी कि बीच में स्कूल आता है, तो हम स्कूल से नजदीक से जाते हुए मार्केट पहुंचेंगे. तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है स्कूल और वो कितना किलोमीटर होगा. तो अनिल के घर से स्कूल तक का है 3 किलोमीटर और उसके आगे 2 किलोमीटर और है. तो उसका मतलब 3 plus 2 means here you have to write 5 kilometer. Okay, then the shortest route from Anil's house to the airport is dash kilometer and is past the dash. अब क्या है, अनिल के हाउस से एयरपोर्ट जाना है. तो दिस इज अनिल्स हाउस. वेर इज एयरपोर्ट, यहाँ पर है एयरपोर्ट. तो अनिल के घर से पहले यहाँ पर रेलवे स्टेशन आएगा और फिर उसके बाद एयरपोर्ट आएगा. तो हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर. तो हियर 2 kilometer and here is given 4 kilometers. So 2 plus 4 6 and पास द डैश. पास द डैश मतलब कौन सी जगह से आप पास होके जा रहे हो, वाया रेलवे स्टेशन. सो इन द सेकेंड ब्लैंक यू हैव टू राइट रेलवे स्टेशन. Like this you have to write rest of the 2 blanks and question in the textbook. The next question it is the same like this. Give the air distance in kilometer from, this is the map of India, Kolkata to Bangalore. So here first of all you find where is Kolkata. Kolkata is here, Kolkata to Bangalore. So this is the distance between Kolkata to Bangalore and the number is given here 1881 kilometer. So you have to write here 1881 kilometer. Like this all the city names are given and you have to write the distance between two cities and you can write it from this map. Okay, so I hope all of you understood in this topic of the chapter measurement in kilometer, meter and centimeter. So all of you do this exercise in your textbook only. No need to write anything in the notebook and finish this exercise by yourself. It is very easy. You can do it. And I hope all of you understood this. Thank you and have a nice day.